Students, I once again welcome you all to my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to take topics from Standard 12 Commerce, and my topics are based on organization of commerce and management. So these days we are going through chapter number 2, functions of management. Let's see what's there in today's content. Today we will be understanding about the introduction, second function of management, that is called as organizing, and we will also see about the importance of organizing. So these are the functions of management. As you all know, there are basically six functions of management. Planning, the second one is organizing, third one is staffing, directing, coordinating and controlling. So in this session I will be explaining you about the second function of management, which is called as organizing. So let's start the second function of management, which is called as organizing. So let's have a look on the meaning of organizing. The first point says, organizing is the process of identifying, bringing the resources together such as men, material, money, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये ऑर्गेनाइजिंग के बारे में ये बताता है कि ऑर्गेनाइज करना मीन्स किसी चीज़ का पता लगाना, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, देन रिसोर्सेज या फिर संसाधनों को एक साथ लेकर आना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो होते हैं मेन, मटेरियल, लोग, पैसा, मशीन्स और डिफरेंट टाइप के मेथड्स. सो ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आना, इनको ग्रुपिंग करना एंड फाइनली इनको अरेंज करना सो दैट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड प्रॉपरली. ये जो भी कुछ काम किया जा रहा है उसके पीछे का मकसद है प्लानिंग. In the last video, I had explained to you about the first function, which is called as planning. So in every business organization, to decide something or to do something in future, first we have to plan something. We have to make some plans so that we can go accordingly. हमें फ्यूचर में क्या करना है या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में जो भी किया जाना है उसके लिए अभी से प्लानिंग की जाती है. सो दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप. नाउ दिस इज़ द सेकेंड स्टेप, जहाँ पर प्लानिंग के हिसाब से हमें चीज़ों को इंतज़ाम करना है, चीज़ों का अरेंजमेंट करना है. सो हमने प्लानिंग में अगर डिसाइड किया है कि इस साल हमारी कंपनी का सेल्स टारगेट ये रहेगा, हम इतने कार्स को बेचने का टारगेट बनाएंगे, दिस इज़ द प्लानिंग. इसके हिसाब से सेकंड वाला फंक्शन किया जाएगा, सेकंड वाला काम किया जाएगा, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग करना. तो अब हम किस तरीके से अपने टारगेट को हासिल कर पाएंगे, उसके लिए हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है. वी हैव टू ब्रिंग ऑल द रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू planning, and with the help of those resources we would be able to achieve the objectives effectively and efficiently. That's why organizing has to be done properly. Second point says, in planning the management decided what is to be done in future. प्लानिंग में मैनेजमेंट वाले ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या किया जाएगा, जबकि ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन में ये डिसाइड किया जाता है द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान्ड. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से कौन कौन से वेज या कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करके प्लानिंग की चीज़ों को हासिल किया जाएगा या अटेन किया जाएगा. दैट्स वाई दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन in relation with the first function, that is planning. The third point says, this function is important for execution of the plans which have been prepared by the top level management. Organizing किया जाता है on the basis of the planning done by the top level management. जैसे कि हम सबको पता है there are 3 levels, top level, middle level and lower level. सबसे टॉप मोस्ट लेवल में
लोगों का काम है प्लानिंग करना, किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से काम को आप शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट जो भी कुछ प्लान किया है उसको कैसे हासिल करें, वो उसकी शुरुआत ऑर्गेनाइजिंग से की जाएगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन पार्ट. Now this definition is about according to Mooney and Rayleigh. इन दो लोगों ने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस. एक होता है ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है, रिसोर्सेज का इंतज़ाम किया जाता है. और जो सेकंड है वो है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर लोग मिलकर काम करते हैं और उनके काम करने का मकसद होता है किसी पर्टिकुलर या कॉमन मकसद को हासिल करना. तो सब लोग मिलकर उस एक मकसद को हासिल करने के लिए, अटेन करने के लिए काम करते हैं. तो जिस जगह पे काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ form of every human association. So this was all about meaning of organizing. Let's see the importance of organizing. अभी organizing क्यों किया जाना चाहिए? What is the importance? What is the significance? क्या ज़रूरत है? इसका महत्व क्या है? वो हम अभी देखेंगे यहाँ से. The first importance says about specialization. जब हम चीज़ों का इंतज़ाम प्रॉपरली करते हैं तभी हम किसी काम को हट कर अच्छे ढंग से कर पाएंगे, स्पेशल तरीके से कर पाएंगे. तो किसी भी काम को एक अलग ढंग से करना, स्पेशल तरीके से करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का होना बहुत ज़रूरी है. चीज़ों का अवेलेबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है. So, organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments. ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर काम को, वर्क को अलग अलग यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. सो ऑल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से कॉलेज में टीचर्स का काम अलग डिवाइड किया जाता है, प्रिंसिपल का काम अलग है, प्यून्स का काम अलग है, ऑफिस वालों का काम अलग है, क्लर्क का काम अलग है. सो लाइक दिस, in a college or in a school, the work is divided into different units and departments. Teachers will look after the student section or the teaching section. Clerks or the official staffs will look after the office work. उसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. नाउ दिस डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन. जब हम किसी काम को डिवाइड करते हैं तो वो काम वक्त पर सही ढंग से और अच्छे ढंग से किया जाता है. स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चाहते हैं एफिशिएंसी हो, कोई काम अच्छे ढंग से हो, बेहतर ढंग से हो, तो उसके लिए ज़रूरी है हर काम में स्पेशलाइजेशन होना. देयर शुड बी स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़. लेट्स सी द सेकेंड इम्पोर्टेंस. सेकेंड वाला इम्पोर्टेंस, इट स्टेट्स अबाउट द जॉब्स. बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग it helps in defining the jobs properly. Now, the first point says organizational structure helps in putting the right man on right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualifications, skill and experience. Organizational structure काम कैसे करता है? वो काम करता है जब हम सही लोगों को सही जॉब के लिए चुनते हैं. when the right people are selected for the right job, तब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपरली काम करता है. और हम लोग राइट इंसान को कैसे चुन पाते हैं? हम राइट इंसान को उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से चुन पाते हैं. देन दोज सिलेक्टेड पीपल विल बी असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज़ एंड दे विल बी गिवन different departments as per their qualifications, as per their skills and experience. तो जिस
कैंडिडेट के पास जैसा अनुभव होगा, जैसा टैलेंट होगी, क्षमता होगी, उसके हिसाब से उसको उस डिपार्टमेंट के लिए चुना जाएगा. सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ प्रॉपरली अगर हमने लोगों का चुनाव किया तो इससे क्या होगा? इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली विच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ एवरी पर्सन. इससे क्या होगा? हर इंसान का रोल उसको क्लियर रहेगा कि हमें क्या काम करना है, किस ढंग से करना है. Now come to the third importance. It clarifies authority and responsibility. Now organizing is again important for defining or clearing the thing properly, clearing the roles, clearing the duties and their responsibilities properly. Now organizational structure में हर मैनेजर का रोल डिफाइंड होता है, हर मैनेजर का रोल बताकर दिया जाता है. दिस कैन बी डन बाय, और ये किया कैसे जाएगा? ये किया जाएगा सो दैट अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर्स. हर मैनेजर को उसकी अथॉरिटी, उसके पावर्स डेलीगेट किए जाएंगे, उसे दिए जाएंगे एंड उनको वो तरीके भी बताए जाएंगे जिन तरीक़ों से उनको अपने पावर्स का इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज करनी है. So everything will be communicated to the manager, how they have to perform their duties as well as how they have to look after their departments and exercise or use their powers, so that misuse of powers doesn't take place. So organizing के process में managers को सब बताकर दिया जाता है जिस वजह से वो अपने powers का, अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. Well-defined jobs and responsibilities helps in bringing efficiency into managers working. जब हर मैनेजर को प्रॉपरली उनका जॉब, उनके ड्यूटीज़, उनकी जिम्मेदारियां बताकर दी जाएंगी तो इससे उनके काम करने के ढंग में काफ़ी बदलाव आएगा और सुधार आएगा, एफिशिएंसी आएगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इससे रिजल्ट्स विल बी इन्हांस्ड. That's why organizing function is important. Come to the fourth importance. Now, with the help of organizing, coordination can be established effectively. लोगों के बीच में coordination होना बहुत ज़रूरी है, तालमेल होना बहुत ज़रूरी है. If there are two branches working, for example, अगर हम किसी कॉलेज को लेते हैं, उस कॉलेज के दो ब्रांचेस सेम नाम से चल रहे हैं तो दोनों ब्रांचेस के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. कब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कब स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो रहे हैं, हर चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. सो लेट्स सी. दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित होना, इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है और ये सब कुछ सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग की मदद से किया जा सकता है. इट ऑल्सो क्रिएट्स clear-cut relationships among positions and ensures mutual cooperation among individuals. And because of organizing, there are clear-cut relationships among the positions. It means every manager is well acquainted or well aware about their responsibilities. हर मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, अपने क्लियर कट रोल्स पता है एंड उनके आपस के रिलेशंस पता है. एंड दैट्स वाई इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन. और इस वजह से सभी लोगों के बीच में एक कोऑपरेशन की भावना, एक कोऑपरेशन बना रहता है, आपसी सहयोग बना रहता है. द थर्ड पॉइंट सेज coordination between all departments and different level of managers is important for smooth functioning of organizational activities. जब इतने सारे लोगों के बीच में आपस में रिलेशंस अच्छे होंगे, आपस की भावना, सहयोग वाली भावना होगी, एक दूसरे को हेल्प करने वाली भावना होगी, तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज in a business organization. So this is very important. If you want to run all the activities smoothly in your business organization, then
there must be a proper coordination as well as cooperation, and these things can take place only because of organizing. That's why this function is important. Come to the fifth function, helps for effective administration. ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है. This function determines different positions, departments, activities and the roles are clearly structured. ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, इस फंक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, फिक्स की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, डिफरेंट पोजीशंस फिक्स की जाती हैं. मैनेजर की पोजीशन अलग, एम्प्लॉयज़ की पोजीशन अलग. सो हर किसी इंसान की पोजीशन डिटरमाइन की जाती है, डिपार्टमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं, उनके काम, एक्टिविटी और सबके रोल्स क्लियरली तैयार किए जाते हैं. देन द अटमोस्ट केयर इज टेकन, बहुत सावधानी बरती जाती है, वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब विद राइट अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो बहुत ध्यान दिया जाता है कि आप किसी काम के लिए किसी इंसान का चुनाव जब करो तो बहुत सोच समझ के करो. उसकी क्षमताएं, उसकी क्वालिफिकेशंस सब कुछ बराबर होनी चाहिए, एंड जिस हिसाब से उनको अथॉरिटीज़ दिए जाएंगे, पावर्स दिए जाएंगे, वो सब चीज़ें भी बहुत ध्यान से देखी परखी जाती है. नाउ इट इज़ अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़. सो किसी भी काम को अगर हासिल करना है तो सबसे पहले काम को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है. देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क एमंग डिफरेंट यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स, एंड साथ साथ सभी को पावर्स देनी भी ज़रूरी है. किसी न किसी इंसान को पावर्स दिए जाते हैं, अथॉरिटीज़ दिए जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली की, सो इट विल लीड टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो काम संभाल रहा है, जो काम देख रहा है, वो अच्छे ढंग से अपना काम कर पाएगा और संभाल पाएगा. दैट्स वाई इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्लेज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Come to the sixth importance, and this is the last importance of organizing. कि organizing क्यों ज़रूरी है? It is helpful for growth and diversification. जब हम चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करते हैं, लोगों को अरेंज करते हैं, मटेरियल को, पैसे का इंतज़ाम अच्छे से करते हैं, हर चीज़ को प्रॉपरली हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है वो आता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन पर. सो द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, उसकी बढ़ोतरी, उसके अच्छे ढंग से काम करने पर निर्भर करती है. द वे इन विच यू परफॉर्म वेल, द वे इन विच यू conduct your activities properly, everything will result into the success of an organization. Everything is interrelated. Now clearly defined roles and responsibilities. सारे roles responsibilities clearly बताए जाते हैं इस function में. सभी मैनेजमेंट में काम करने वाले लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, साथ साथ प्रॉपर कंट्रोल के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी हैं, ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस. वहाँ काम करने का ढंग बदलेगा और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी कामयाब होगा या और बढ़ोतरी करेगा. इट विल ग्रो वेल और इट विल प्रॉस्पर वेल. दिस इज़ पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ वेल डिफाइंड. सो ये सारी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तब होती हैं जब वहाँ पर हर चीज़ प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होती है, जब वहाँ पर लोगों को काम पता होता है, उनको उनके ड्यूटीज़, उनकी जिम्मेदारियाँ क्लियरली पता होती हैं. वहाँ पर जाकर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होता है, एंड दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेल. सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पोर्टेंस. हमने देखा कैसे ऑर्गेनाइजिंग ज़रूरी है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग से रिलेटेड है. सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कॉल्ड एज स्टाफिंग. अब ये सब कुछ तो
ऑर्गेनाइज वाला था जहाँ पर रिसोर्सेज का इंतज़ाम किया जाता है। जो थर्ड फंक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टाफिंग, मीन्स स्टाफ, हाउ स्टाफ आर रिक्रूटेड, हाउ they are selected. So we will study that part in the next session. Till then, thanks for watching and stay happy. Take care. Till then, thank you so much.